Hello friends, you are most welcome here. In the previous lecture, we have discussed a little bit introduction about the atom. हमने atom के respect में कुछ चीजें discuss किए थे. That was the introductory part of the series. Now in the today's session, we will discuss the models of atom. इस lecture का जो पहला topic रहेगा, that will be the Thomson's model of atom. This is the first model that was given with respect to the atom. After that, we will shift towards the second topic, that is the famous experiment of Rutherford called as Rutherford's alpha ray scattering experiment. This is the most important topic here. यहाँ से हम कुछ questions expect कर सकते हैं. And in the last of the session, I will discuss previous year questions that were asked in different competitive exams. ये वो questions है, ये उन topic से related है जो हम यहाँ discuss करेंगे. Now, without wasting your time, I will start today's lecture with the models of atom. What are these models? Models को explain करने से पहले हमें थोड़ा previous lecture को recall करना होगा. Previous lecture से हमने conclude किया जो ये atom है, this is made up of subatomic or fundamental particles. वो कौन से particles है? That is simply electron, proton and neutron. In particles के arrangement, how they are arranged in the atom or how they are located in the atom, this is explained by these models. I hope इतना आपको समझ आया होगा. Different time periods पे different models दिए गए हैं. जो हमारा पहला model है, that is Thomson's model of atom. Now we will discuss here Thomson's model. जो पहला point है, this was given by J.J. Thomson. This is our famous scientist. ये वही Thomson साहब है जिसने हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था इन 1904. इस डेट पे हमें थोड़ा यहाँ पे फोकस करना है. अगर आप प्रीवियस लेक्चर रिकॉल करोगे, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था जो इलेक्ट्रॉन है, दिस वाज डिस्कवर्ड इन 1897. प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया था 1886 और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया था 1932. यहाँ पे जो थॉमसन साहब है इसने मॉडल दिया 1904. इसका मतलब एट द टाइम ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया था. सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कंसेप्ट आया था, अभी न्यूट्रॉन का कंसेप्ट नहीं आया था. सो हम इस न्यूट्रॉन को एज इट इज रखेंगे. हम इस तरह से बोल सकते हैं जो ये थॉमसन साहब का मॉडल है, दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज और ऑन द बेसिस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. यही इनका कहना है. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, an atom consists of positively charged sphere made up of protons and electrons are embedded in it. मतलब जो एटम है दिस इज स्फेरिकल इन शेप. ये हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं दिस इज स्फेरिकल इन शेप. एक पॉइंट ये रहा. और जो इस स्फीयर का मेजर पोर्शन है, मेजर स्पेस है, दिस इज ऑक्युपाइड बाय द मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज. मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और मास ऑफ प्रोटॉन्स आपको इस फिगर से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. This is the atom or this represents here the Thomson's model of atom. This is spherical in shape. और जो इसका major portion है, this pink colored portion, this represents here the positively charged mass or mass of protons. एक point ये रहा. दूसरा point ये है जो ये blue color dots है, these represent the electrons embedded in the positive मास ऑफ प्रोटॉन्स. इस तरह से एक्सप्लेन करता है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. आई होप इतना आपको समझ आया होगा. इनका यह भी कहना था जो इस एटम में पॉजिटिव चार्ज है, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस एटम इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज. यानी जो नेट चार्ज है इस एटम पे दैट इज जीरो. दैट इज द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. So he also proposed that an atom consists of equal number of electrons and protons. That means an atom is electrically neutral. This is Thomson's model. Thomson's model को हम वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं और प्लम पुडिंग मॉडल से भी जानते हैं. Why this is called so? देखिए स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे, जो ये थॉमसन साहब का मॉडल है, this is similar to the water or watermelon. This is watermelon here. जो इस वाटरमेलन का जो पल्प है जो हम खाते हैं, this red portion, this represents here the positive charge. This represents the positive charge. और जो इस वाटरमेलन जो इस सीड्स embedded है, these seeds represent the electrons embedded in the mass of positive charge. That is why we call this as watermelon model. Why this is called plum pudding model?
व्हाट इज दिस प्लम पुडिंग? देखिए स्टूडेंट, जो ये प्लम पुडिंग है ये उन दिनों इंग्लैंड में फेमस डिश था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली दिस इज प्लम पुडिंग हेयर। जो इसका ये येलोइश पार्ट है, दिस इज द फ्लोर पार्ट एंड दिस रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और जो प्लम है, these dots here, black, these chocolate color dots, these are actually the dry fruits present in this pudding. फ्लोर का पार्ट को हम पुडिंग कहते हैं। जो ये चॉकलेट का जो सीड्स है, ड्राई फ्रूट्स है, these represent the electrons. That is why we call this as plum pudding. These are simple points related to the Thomson's model of atom. फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे एडवांसमेंट हुए साइंस में। इसके बाद आया रादरफोर्ड साहब, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। जो इस एक्सपेरिमेंट से हमने रिजल्ट्स कंक्लूड किए वो थॉमसन साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद रादरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद इस थॉमसन मॉडल को रिजेक्ट किया गया। नाउ वी विल डिस्कस हियर रादरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रादरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो पहला पॉइंट आपको याद रखना है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, दैट इज दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम। मतलब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू रादरफोर्ड साहब ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। Who discovered nucleus of atom? Simply by Rutherford through the Rutherford's alpha ray scattering experiment. This is the setup of experiment जो उन्होंने किया। अब हम थोड़ा इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे सो दैट जो ये ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स हैं इस एक्सपेरिमेंट के वो आपको अंडरस्टैंड हो जाए। उन्होंने एक क्यूबिकल बॉक्स लिया। दिस इज क्यूबिकल बॉक्स मेड अप ऑफ लेड मेटल। इस क्यूबिकल बॉक्स के आगे उन्होंने छेद किया। व्हाई? आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर। एंड इनसाइड दिस क्यूबिकल बॉक्स, यहाँ पे जो ये ऑरेंज कलर का ये डॉट आपको नजर आ रहा है, दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। इनसाइड दिस लेड बॉक्स ही केप्ट द source of alpha particle, that is radium or thorium radioactive element. एक्चुअली जो है रेडियम है, इसका न्यूक्लियस बहुत ही अनस्टेबल होता है। इट इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इन द फॉर्म ऑफ अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज और इन द फॉर्म ऑफ साउंड और हीट। ये एनर्जी इमिट करता रहता है। सो अल्फा पार्ट, इस रेडियम का क्या खुशियत है? इट इमिट्स द अल्फा पार्टिकल्स। व्हाट इज दिस अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज सिंपली हीलियम न्यूक्लियस, He2 पॉजिटिव। यानी जो हीलियम एटम है, हीलियम एटम इज मेड अप ऑफ 2 electrons, 2 protons and 2 neutrons. These are the subatomic particles of this helium atom. जब हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं फ्रॉम दिस हीलियम एटम, इट फॉर्म्स द He2 पॉजिटिव। He2 पॉजिटिव, इसी He2 पॉजिटिव को हम अल्फा पार्टिकल के नाम से जानते हैं। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर क्या हुआ? जो ये अल्फा पार्टिकल्स है दैट इज इमिटेड बाय दिस रेडियम एटम, उन्होंने इन अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया टुवर्ड्स द गोल्ड फॉयल। दिस इज द गोल्ड फॉयल, थिन शीट ऑफ गोल्ड, इस पे स्ट्राइक किया। फिर उन्होंने इस सेटअप के आसपास एक स्क्रीन रखा। दिस स्क्रीन हियर, दिस स्क्रीन इज मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड की खुशियत ये है, जब इस स्क्रीन पे, इस जिंक सल्फाइड पे अल्फा रेज स्ट्राइक करते हैं, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, इट प्रोड्यूस फ्लैश ऑफ लाइट। यानी एज ए डिटेक्टर उन्होंने इस जिंक सल्फाइड को यहाँ पे रखा। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, जब उन्होंने इन अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया इस गोल्ड फाइल पे, उन्होंने यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व किए। यानी जो पहला उन्होंने ऑब्जर्व किया, most of the alpha particles passed straight through the gold foil. यानी 99% of alpha particles ने straight pass किया through this gold foil. जो ये ऑरेंज कलर का यहाँ पे ये this ray है, this is the alpha particle here that is released by this radium atom. इस लेड बॉक्स के आगे उन्होंने छेद रखा जिसके थ्रू ये अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्शन लेते हैं टुवर्ड्स दिस गोल्ड फॉयल। फिर उन्होंने क्या देखा?
99% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ने स्ट्रेट पास किया थ्रू दिस गोल्ड फाइल। ये वो अल्फा पार्टिकल्स है जिन्हें स्ट्रेट पास किया थ्रू दिस गोल्ड फाइल। ये रहा ऑब्जर्वेशन 1। ये ऑब्जर्वेशन आपको याद रखने हैं या हमें आगे डिस्कस करने हैं। जो पहला ऑब्जर्व उन्होंने किया कि 99.9% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू दिस गोल्ड फाइल। फिर क्या, उन्हें सेकंड ऑब्जर्वेशन ये देखा कि सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। ये है पाथ अल्फा पार्टिकल, दिस इज द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्ट्रेट पास करता है थ्रू दिस गोल्ड फाइल। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, उन्हें डिफ्लेक्शन शो किया, यानी थ्रू स्मॉल एंगल्स। जो यहाँ पे एंगल है दैट इज लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पे जो ये एंगल है ये वो अल्फा पार्टिकल है जिन्हें डिफ्लेक्शन दिखाया थ्रू स्मॉल एंगल्स। दीज आर द अल्फा पार्टिकल्स। इनके बीच में जो एंगल है दिस इज स्मॉल, लेस देन 90 डिग्री। दिस वाज सेकंड ऑब्जर्वेशन। ये रहा सेकंड ऑब्जर्वेशन। द थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज very few alpha particles, very few alpha particles, that is 1 out of 20,000 alpha particles, उन्होंने डिफ्लेक्शन शो किया थ्रू एंगल्स ग्रेटर देन राइट एंगल्स, यानी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द एंगल ग्रेटर देन 90, राइट एंगल्स आर 90 डिग्री। ये वो अल्फा पार्टिकल्स है जिन्होंने डिफ्लेक्शन दिखाया ग्रेटर देन 90 डिग्री और शो लार्ज डिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो एंगल है इनके बीच में दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। These were the observations that he observed in his experiment. इन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू उन्होंने क्या कंक्लूड किया? नाउ वी विल गो टू द कंक्लूजन्स हियर। जो उन्होंने पहला ऑब्जर्व किया, यानी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू दिस गोल्ड फाइल। ये मैंने गोल्ड का एक एटम लिया। गोल्ड के पास बहुत सारे एटम्स है। दिस थिन शीट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स। यहाँ पे मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एटम लिया। दिस इज द गोल्ड एटम हियर। These are the alpha particles that pass straight through this gold atom, यानी 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ने पास किया straight through this gold file। इसका मतलब जो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम है दैट इज एम्प्टी, यानी जो स्पेस है इनसाइड दिस एटम वो खाली है। दैट इज व्हाई दे पास्ड स्ट्रेट थ्रू दिस गोल्ड फाइल। नाउ वी विल गो टू द सेकंड कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन आपने क्या निकाला? उन्होंने क्या निकाला? मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। दिस वाज द फर्स्ट कंक्लूजन। नाउ जिन अल्फा पार्टिकल्स ने डिफ्लेक्शन दिखाया थ्रू स्मॉल एंगल्स, थ्रू लेस देन 90 डिग्री, दीज आर द अल्फा पार्टिकल्स दैट शो डिफ्लेक्शन थ्रू द स्मॉल एंगल्स, लेस देन 90 डिग्री एंगल्स, 90 डिग्री एंगल। उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूड किया, this observation indicates that the positive charge of the atom occupies very little space। क्योंकि कुछ ही अल्फा पार्टिकल से डिफ्लेक्शन दिखाया, दैट इज वाई जो अल्फा पार्टिकल है इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। दिस He2 पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल्शन करते हैं। सो ड्यू टू दिस रिपल्शन कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने डिफ्लेक्शन किया। इसका मतलब कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स ने डिफ्लेक्शन किया, इसका मतलब जो स्पेस है दैट इज ऑक्युपाइड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज इज वेरी लिटिल स्पेस। इसकी वजह से जो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थे उन्हें डिफ्लेक्शन शो किया ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज। सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जब ये अल्फा पार्टिकल्स के नजदीक से गुजरते हैं इट शोज डिफ्लेक्शन। इस तरह से डिफ्लेक्शन शो करता है ड्यू टू द रिपल्शन। ये रहा दूसरा कंक्लूजन। और तीसरा ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या कंक्लूड किया, यानी तीसरा उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि जो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थे, यानी 1 out of 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, दे शो डिफ्लेक्शन थ्रू लार्ज एंगल्स। दिस इज द अल्फा पार्टिकल, these are the alpha particles that show deflection through large angles, यानी greater than 90 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल है, सपोज दिस इज द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो इस तरह से है, जो दैट इंप्लाइज द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका मतलब ये है ऑल द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। क्योंकि
बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स ने डिफ्लेक्शन शो किया थ्रू लार्ज एंगल से। इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर कुछ बॉडी है, हैवी बॉडी है। ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन टू हैवी बॉडीज, जो अल्फा पार्टिकल है इसके पास 4 यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास है। ड्यू टू द मास दैट इज कंसंट्रेटेड इन वेरी लिटिल स्पेस ऑफ दिस एटम, this alpha particles collides with this mass and shows the large deflection here. ये 3 कंक्लूजन्स उन्होंने कंक्लूड किए फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे मैं थोड़ा रिकैप करता हूँ ताकि आपका एक कंसेप्ट डेवलप हो जाए। 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ने स्ट्रेट पास किया। इसका मतलब जो एटम है उसका स्पेस एम्प्टी है। इसका स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। सेकंड ऑब्जर्वेशन इज few alpha particles show deflection through small angles। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का that is concentrated in the little volume or little space। क्योंकि कम ही अल्फा पार्टिकल्स ने डिफ्लेक्शन शो किया थ्रू स्मॉल एंगल से, इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज देयर इज रिपल्शन एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन देयर इज डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन इज दैट very few alpha particles, यानी out of 20,000 alpha particles ने deflection show किया through large angles। का मतलब when two heavy bodies collide each other, they deflect, they deviate from their path। इसका मतलब कुछ ही alpha particles ने show किया। इसका मतलब जो space है, जो mass है इस atom का, that is concentrated in the little space or little volume। इन conclusions के basis पे रादरफोर्ड साहब ने अपना मॉडल तैयार किया। वी कॉल दिस एज रादरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। क्योंकि जो ये थॉमसन साहब है उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये रिजल्ट्स, ये कंक्लूजन्स। दैट इज व्हाई द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम गॉट रिजेक्टेड हियर एंड रादरफोर्ड पुट हिज ओन मॉडल। वी कॉल दिस एज रादरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। इस मॉडल को हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Now I will discuss here few MCQs regarding the topics here that we discussed. The post MCQ is here, who is credited to the discovery of electron, यानी इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन। चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। द करेक्ट ऑप्शन इज J.J. थॉमसन। नाउ आई विल डिस्कस अदर ऑप्शंस हियर। चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, न्यूक्लियस ऑफ द एटम। Within an atom, the nucleus when compared to the extra nuclear part is, यानी जो साइज है न्यूक्लियस का वो कैसा है एज कंपेयर टू द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट और रेस्ट ऑफ द एटम। द ऑप्शन इज बिगर इन वॉल्यूम एंड हैवियर इन मास, स्मॉलर इन वॉल्यूम एंड बट हैवियर इन मास, smaller in volume and higher in lighter in mass, and the fourth option is same in size। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। जो साइज है न्यूक्लियस का दैट इज 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। बट जो साइज है एटम का ये न्यूक्लियस का साइज है। दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस का एटम का साइज है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। यहां से आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा द साइज ऑफ दिस न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन वॉल्यूम एज कंपेयर्ड टू द एटम। सो स्मॉलर इन वॉल्यूम, यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में स्मॉलर इन वॉल्यूम है, तीसरे ऑप्शन में स्मॉलर इन वॉल्यूम है। बट आपने अभी अंडरस्टैंड किया होगा जो ये मास है न्यूक्लियस का, मास है एटम का, दैट इज कंसंट्रेटेड इन दिस whole mass is concentrated in this nucleus। का मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है this is smaller in volume but heavier in mass as compared to the rest of the atom। The next question is here, which metal was used by Rutherford in his alpha ray scattering experiment। ये हमने अभी डिस्कस किया। this is gold sheet, thin gold sheet। why he used this gold in his experiment, उन्होंने क्यों ये गोल्ड यूज किया? बिकॉज जो गोल्ड है दिस इज मैलिएबल, उसको हम बहुत ही थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज गोल्ड।
Next question is, which of the following was awarded to the Nobel Prize for its measurement of elementary electronic charge? The correct option is Robert Millikan. R.A. Millikan ने actually डिस्कवर किया था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू एक्सपेरिमेंट कॉल्ड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन, दिस इज एक्चुअली न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन हमें आगे डिस्कस करना था, दिस इज बेस्ड ऑन द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, बट यहाँ पे आया है, सो वी विल डिस्कस हियर। The proton is heavier than electron by, ये भी हमने डिस्कस किया है, 187 टाइम्स, 1837 टाइम्स, 3837 टाइम्स, 2827 टाइम्स। अगर आपको याद होगा हमने बोला था जो प्रोटॉन है, द मास ऑफ प्रोटॉन इज heavier than this mass of electron by 1840 टाइम्स। मुझे याद आ रहा है मैंने बोला था the mass of electron is 1 by 1840 times of mass of hydrogen atom. जो mass of hydrogen atom है, this is similar to the mass of proton, so we can say that the mass of electron is 1 by 1840 part of mass of proton, या proton का जो mass है that is 1840 times the mass of electron, ये मैंने डिस्कस किया है। This is 183, accurate option is 1837, जो accurate value है this is 1837, but हम approximately यहाँ पे 1840 लेते हैं। This is all about today's lecture. In the next lecture we will discuss the Rutherford's model of atom and other models, that is Bohr's model of atom. Thank you for watching.